Hello, good morning, friends. Today we will talk about price volume action. बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे यूट्यूब वीडियोस हैं प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे कैंडल स्टिक से बताते हैं चार्ट पैटर्न से बताते हैं पीपल टीच थ्रू डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स बट व्हाट दे डोंट टेल यू इज कैंडल स्टिक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन एक कैंडल स्टिक क्या क्या बता सकती है आपको आज हम वो देखेंगे प्राइस वॉल्यूम एक्शन का फर्स्ट पार्ट है ये ओवरऑल द टॉपिक इज वेरी बिग तो इट विल हैव मल्टीपल पार्ट्स हम जैसे आज एक कैंडल लेते हैं ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का वी टेक दिस कैंडल दीज थ्री कैंडल्स वी टेक दीज थ्री कैंडल्स अब आप देखिए इस कैंडल में प्राइस वॉल्यूम एक्शन का मतलब क्या होता है प्राइस का एक्शन कैसे हुआ और उसके पीछे कितना वॉल्यूम लगा लो वॉल्यूम पे राइज है हाई वॉल्यूम पे राइज है एवरेज वॉल्यूम पे कोई मूवमेंट नहीं है स्टॉक में लो वॉल्यूम सेल है हाई वॉल्यूम सेल है उसका ट्रेंड पे क्या असर पड़ेगा what is the movement of price as compared to the trend that is all the entire thing comes under price volume action or you call it price volume analysis see price volume analysis basically आज तीन तरह के होते हैं price trend analysis volume trend analysis price and trend analysis and volatility based और इन सबको स्टडी करने के लिए अप्रोच अलग होती है देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच टू स्टडी ऑल दीज एंड you got to look at certain factors accumulation support reversal target stop loss or momentum and time frame there is a misconception in the market में ये गलत फीलिंग है कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन सिर्फ इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडर्स यूज करते हैं नो इट इज रॉन्ग कंप्लीटली रॉन्ग price volume action can be used on a monthly chart as well weekly chart as well not only for 15 minutes or 30-minute candle for some short term breakout and option trading or expiry days it can be used to accumulate buy and hold quality stocks for a longer period of time 2 months 3 months 4 months even 6 months so price volume action as a concept as it is very easy to understand for a 15 this is a 15-minute nifty chart for a 15-minute nifty chart for say for example this particular candle it looks like an inverted hammer not really an inverted hammer a little bigger body but to form this candle what was the price action behind forming this candle where did at what level in this particular candle if I raise the if I enlarge the chart again what was the price action here कितना यहाँ पे कितना वॉल्यूम हुआ यहाँ पे क्या हुआ ऐसा कि कैंडल नहीं बनी यहाँ पे कितना वॉल्यूम हुआ एट दिस लेवल कितना वॉल्यूम हुआ तो एट डिफरेंट लेवल्स you need to understand what was the volume whether the volume was higher at the lower end of the candle or whether the volume was higher at the upper end of the candle but since what does this candle show this candle does not show where it opened this candle does not show where it closed or it only shows the high low open and close but it does not show the clarity with which what happened inside it to understand what happened inside it will give you a clear picture of price volume action to study what inside it you need to have certain indicators with you certain leading indicators certain lagging indicators like on price volume RSI Bollinger bands moving averages short term moving averages if you combine all this together you get a concept of price volume action with you इसके बिना प्राइस वॉल्यूम एक्शन अलग है कोई बोले कि इनसाइड कैंडल से अगर हमें ब्रेकआउट मिला है वी हैव अ रिवर्सल इन प्लेस एंड देन वी विल डू वेल नो इट डजंट हैपन दैट वे इट डजंट हैपन दैट वे अगर आप हम उसी चीज को आगे अगर इफ यू कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक अगेन देयर वाज अ फॉल हियर नीचे आया एंड देन वी हैड अ सपोर्ट बेस हियर we had a support on Nifty at 15772 we had a support here and then it reversed now where will you buy it as per price volume action where will you buy it now look at the volume closely
We look at the volume closely. When it was falling, the volume was also falling. At the top, higher the volume, lower volume, lower volume, lower volume, lower volume. But after that, the volume stabilized. एक normal volume parameter पे आ गया. The volume stabilized. So what does it indicate? The fall was much sharper. The fall was much sharper as compared to the, look at the trend here. The fall was much sharper and the rise is much slower. Rise बहुत धीरे धीरे हुआ है. Rise बहुत धीरे धीरे हुआ है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम था. तो this is a major indicator of price. This is how price moves. यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे सेलिंग हुई है. अच्छे लेवल पे 15 मिनट्स कैंडल पे at 15,836 there was a lot of selling early in the morning. यहाँ पे एक रिवर्सल बना जो मैंने अभी आपको नोटपैड में दिखाया था. लुक एट दिस. यहाँ पे एक रिवर्सल बना. पहले सपोर्ट लिया, फिर एक रिवर्सल बना, दो कैंडल बनी. यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर की कैंडल बनी, एक और कैंडल बनी. यहाँ पे दोजी बना एंड दिस वाज द प्लेस. क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजिंग है इस कैंडल की प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, तो दिस वाज द बाइंग एरिया. यहाँ पे आप बाई कर सकते थे. यू कुड हैव बॉट हियर. ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे प्राइस वॉल्यूम एक्शन मिलेगा. एंड देन हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू टू होल्ड इट? आप कितनी देर तक ट्रेड को होल्ड करेंगे? आपका टारगेट कैसे बनेगा? आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए, नॉर्मली स्टॉप लॉस जो होता है छोटे टाइम फ्रेम का, वो एक अलग होता है. बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट स्टॉप लॉस अलग होता है. क्योंकि दिस इज अ 15 मिनट चार्ट, दिस इज अ 15 मिनट चार्ट, तो वी विल टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, 2 आवर 3 आवर ट्रेड ओनली. यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया, तो दिस इज योर स्टॉप लॉस 15774. और इफ यू आर एन अग्रेसिव ट्रेडर, यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 15778. बेसिकली द क्लोजिंग ऑफ द टू कैंडल्स, द थ्री कैंडल्स. यू बॉट एट 15801. 788 का आपने स्टॉप लॉस लगाया. और कब तक कैरी करते रहोगे? टिल आपको, जब तक कैरी करते रहोगे तब तक, जब तक आपको प्रीवियस कैंडल से नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलती, जो कि नहीं मिली. ये कल का ही चार्ट है, यस्टरडेज क्लोजिंग. हमें प्रीवियस कैंडल से नीचे की क्लोज मिली ही नहीं on every 15 minute candle. When we are not getting a lower close, then what is the reason to close the trade? Ideally, the trade would have gone till this level, 15,835, or anywhere between 848 to 835. Ideal target would have been between 845 to 835. तो what आपने क्या किया? आपने you buy at 15801. Stop loss was 15788, 13 point stop loss, and the target you got was around 35 to 40 points, 45 points even. This is the concept of price volume action, but there are a lot of other things in it. You got to understand the trend carefully. कल क्या हुआ निफ्टी में? इट वॉज अ वेरी इजी ट्रेड, बहुत आसान ट्रेंड था. तो इट वॉज अ वेरी इजी ट्रेड, बट नॉट एवरी डे यू गेट एन इजी ट्रेड. तो फॉर getting an easy trade, or to understand different other concepts of a price volume action trade, look at what happened day before yesterday in Nifty. हम यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ. This area, in this area what has happened in Nifty? This area basically, forgive me my drawing. अब इस एरिया में क्या हुआ है निफ्टी के? देखिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना, यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना. ये एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ कर ले, यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, मल्टीपल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को टच किया है, तो ये ट्रेंड लाइन बन गई. दैट ट्रेंड लाइन वाज एट 757. नीचे की अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट वाज समवेयर अराउंड 731, 730 एंड 760 के रेंज में निफ्टी वाज होवरिंग अराउंड. अब यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे बना? Breakout was not at this level. Watch my cursor. Breakout was not at this level. Breakout was after the retracement. Candle बनी, previous candle के 50% retracement. It was a very very bullish engulfing candle. उसके ऊपर गया, another bullish engulfing candle. तो your buy level was at around 15,764, and then you were holding the trade.
टिल व्हेन यू वर होल्डिंग द ट्रेड, जब तक आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती। यहाँ पे नीचे क्लोज नहीं हुई, ऊपर जाती गई, यू वर क्लोजिंग द ट्रेड समवेयर अराउंड हियर 791, आपने ट्रेड को क्लोज किया 791 पे। मार्क माय वर्ड्स, आपने 791 पे ट्रेड को क्लोज किया और आपने बाई कहां पे किया? 764 पे। अब इसका स्टॉप लॉस आपने क्या लगाया? प्रीवियस कैंडल का 747 का स्टॉप लॉस लगाया। तो अगर आपको ट्रेड बनाना है, अगर आपको ट्रेड बनाना है तो आपका जो बाई रेंज होगा दैट वुड बी 15764 एंड आपका एसएल कितना होगा? एसएल होगा आपका अराउंड 15745 एंड टारगेट कितना होगा? टारगेट प्राइस वॉल्यूम एक्शन थ्योरी में टारगेट डिफाइंड नहीं होते। अनटिल अनलेस आपका चार्ट पैटर्न एकदम क्लियर नहीं होता, तब तक आप टारगेट को डिफाइन नहीं करते। प्राइस वॉल्यूम एक्शन ट्रेड आर बेसिकली शॉर्ट टर्म मोमेंटम ओपन ट्रेड। जहां तक जाएगा वहां तक हम भी चलेंगे, जहां तक जाएगा वहां तक हम ट्रेड को चलाएंगे। तो क्लोजिंग कहां पे हुई, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये एक दोजी बना, दोजी मीन्स जीरो कैंडल। बहुत लोग दोजी को बहुत कुछ बोलते हैं, रिवर्सल बोलते हैं, स्विंग बोलते हैं, अक्यूमुलेशन बोलते हैं, इनडिसाइसिवनेस बोलते हैं। बेसिकली ऑन चार्ट पैटर्न्स दोजी कैंडल मीन्स इक्वल टू जीरो। दोजी कैंडल का कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। दोजी कैंडल से कुछ भी समझ में नहीं आता किसी को, इम्पॉसिबल है। तो आपका जो ट्रेड बनेगा, आपका बनेगा 792 तक का, 15792। अब आप ये छोटा सा ट्रेड जो करेगा, वो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या मोमेंटम ट्रेडर है या ऑप्शन ट्रेडर है, वो ऑप्शन में भी कर सकता है, फ्यूचर्स में से भी कर सकता है, या कैश बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकता है। तो ये बेसिकली आपके लिए एक प्राइस वॉल्यूम एक्शन का फर्स्ट पार्ट हुआ। हाउ विल यू अंडरस्टैंड प्राइस एज पार्ट ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम इस पे आते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कैसा था। At the entire part the volume was lower. At the entire part the volume was lower. यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम लोअर था, बट द मोमेंट इट स्टार्टेड गोइंग अप, यहाँ पे आप ट्रेंड देखेंगे तो बहुत सिंपल मिलेगा। वॉल्यूम स्टार्टेड गोइंग अप, ट्रेंड वाज अप एंड द वॉल्यूम वाज आल्सो अप, एंड द वॉल्यूम वाज आल्सो अप। जब ये दोनों चीजें एक साथ कॉम्बिनेशन में आती हैं, तब आपको एक प्राइस वॉल्यूम एक्शन का पहला प्रिंसिपल पूरा होता है, दैट इज प्राइस इज आल्सो गुड, वॉल्यूम इज इंडिकेटिंग ऑन द अपसाइड, ट्रेंड इज ऑन द अपसाइड, you can initiate a trade, you can initiate a trade. The entire concept of price volume action revolves around the theory that on certain वॉल्यूम बेस्ड प्राइस मूवमेंट आपको एक ट्रेड मिल जाएगा। जैसे मीन होता है और एक मीडियन होता है ना, वैसे ही प्राइस वॉल्यूम एक्शन होता है। एक सिंपल एवरेज होता है, एक वेटेड एवरेज होता है। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा है एट ए पर्टिकुलर प्राइस लेवल, इफ द वॉल्यूम इज हाई, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, इफ द वॉल्यूम इज हाई एट अ पर्टिकुलर आवरली चार्ट पे देखोगे, एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल, तो उस प्राइस लेवल का वैल्यू अपने आप बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है? क्योंकि वहां पे डेरिवेटिव डेटा बहुत स्ट्रांग बनता है, बाई एंड सेल का डेरिवेटिव डेटा बहुत स्ट्रांग बनता है। एंड व्हेन द नंबर्स आर स्ट्रॉन्गर एट अ पर्टिकुलर लेवल, तो वो मैग्नेट की तरह काम करते हैं। दे आर एन इंडिकेटर इन देमसेल्व्स। मैथमेटिक्स से बड़ा इंडिकेटर कुछ होता भी नहीं है वैसे भी लाइफ में। तो दे आर अ नंबर ऑन टू देमसेल्व्स। तो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि इसको हम बाकी इंडिकेटर्स के साथ कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।